Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. I hope you can see the PPT. Yes, sir. We will wait for 2 minutes, then we will start our discussions. Mangesh Wagmare, are you there? Mangesh Wagmare. Abhishek Satpute, are you there? Yes, sir. Okay. What we discussed yesterday or in our last lecture? Yes, Abhishek. ते नहीं हुआ है क्या? दूसरा Abhishek, are you there? अभिषेक सातपुते, आता आवाज येत नाही बेटा तुला माझा? आवाज ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क इशू. हेलो सर. हाँ, यस बोलिए. यस अभिषेक बोलिए. Unmute yourself, Abhishek. Atharva Kore, are you there? Yes, sir. Okay, what we discussed in our last lecture? Modes of heat transfer, conduction, Speak loudly. convection, radiation. Modes of heat transfer, Modes of conduction, heat transfer. convection. हाँ वो तीन types. Okay, okay. Then मंगेश वाघमारे आला का? Mangesh Wagmare, are you there? He is listening only. Okay. Vinay Sonone, are you there? Yes, sir. Okay. Have you gone through the numericals of the second unit? No, sir, not yet. Not yet. Then when you are planning to go through it? Sir, today. Today. आज का मुहूर्त है, बहुत अच्छा दिन है आज का. 16th day है, मंगलवार है, अच्छा दिन है. So you can go through the numerical, isn't it? Yes. Anyone Sorry, of sir. you have gone through the numerical? Yes. Is there anyone? Yes, sir. Yes. Yes, Pooja. So you had gone through the numerical. Is it simple? हाँ सर. बहुत सिंपल है ना? हाँ.
Exactly. So all the numericals which are there from unit number 1 and unit number 2, all are simple one. Only you have to mug up the formulas, and you have to read the given data carefully, and you have to put those given data into the formulas, and you will get the answer. That is what is you have to do. Okay. So in the our Zoom meeting session, we will start our next unit. That is the third unit. Okay, and daily I am going to add the numericals in the in the Google in the YouTube. Okay, and their link will be provided in the Google Classroom. So daily you have to go through the links which are there in the Google Classroom. So up till now, whatever lectures we have finished, all those lectures, recording of all those lectures is being uploaded in our Google Classroom. So have you gone through it? Yes, is there anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So अगर आपका कोई भी अगर लेक्चर मिस हुआ है, so you can go through that particular link and you can आपको अगर कुछ टॉपिक है जिसमें डाउट है तो आप वो टॉपिक फिर से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. सो सारे लेक्चर्स वहाँ पर मेंशन्ड है आज तक, कल तक के. जैसे हमारे अभी थर्ड यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल पोस्ट द थर्ड यूनिट 2. जैसे फोर्थ यूनिट खत्म होता है, आई विल पोस्ट फोर्थ यूनिट 2. ठीक है. सो यूनिट बाय यूनिट आई विल पोस्ट इट. सो नाउ यू कैन रिवाइज योर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट. यू कैन स्टार्ट your own study. Okay. Now Pooja had asked me one question. So Pooja, can you repeat that question? Yes, sir. Sir, I have a question in working of centrifugal pump. That at initial level, priming of centrifugal pump is carried out. So during priming, how that water is being sucked inside the suction pipe? Like, is there any mechanism for that? Very good. Now, you have a very valid and very good question. That means you are thinking. ये जो questions है ना, ये कब आते हैं? जब आप खुद सोचना start करते हो. Otherwise ये question नहीं आता था. So I really appreciate that you are thinking and you had started your own study. So very good. Now, अब मुझे किसी ने बताओ, कोई भी बताओ कि अगर आपने कभी पंप का इंस्टॉलेशन देखा है क्या? जब नया पंप हम लोग लाते हैं मार्केट में से और उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, वेदर दैट पंप इज सबमर्सिबल पंप, नॉर्मल पंप या फिर बोरवेल, ये कभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे किसी ने देखा है क्या? हाँ सर, देखा है. यस सर. जी, तो आप आंसर कर सकते हो इस सवाल का? यस. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. अच्छा, क्वेश्चन है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में एकदम स्टार्टिंग में प्राइमिंग करना पड़ता है. ठीक है, तो वो प्राइमिंग कैसे करते हैं? हाउ वी कैन डू द प्राइमिंग? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. हेलो हेलो, वॉइस इज ब्रेकिंग. यस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो. हाँ, बोलिए. हाँ सर, इंस्टॉलेशन के वक्त पहले ही वो लेवल तक पानी भर के रखते हैं. बट कैसे? सर मैन्युअली भरते हैं सर. साइड में एक छोटा सा स्क्रू होता है सर. उस स्क्रू को निकालते हैं हम और फिर उसमें किया जाता है. देन वी स्टार्ट द मोटर अगेन. सो आफ्टर 2-3 मिनट्स वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है सर. ओके ओके. सी, स्मॉल स्क्रू रहता है सर. व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड, इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर. Okay. Now see, for an example, if this is the motor, or sorry, if this is the pump, ठीक है? Then यहाँ पर reservoir है. This is the reservoir, and this is the overhead tank. ठीक है? So now this will be the inlet pipe, isn't it? Which can be a flexible pipe or which can be a fixed pipe. ठीक है? Then this is the delivery pipe. ठीक है? So her question is, after once the motor gets started, यहाँ पर पानी, ये जो पाइप है उसमें पानी रहेगा, and then we can do the or motor can do their work.
but initially when during the installation how this is being filled, बहुत सिंपल टेक्निक है. ये जो पाइप है, if it is an flexible one then it is good. If it is what we can say hard pipe, then also ये जो वाला एंड है इसको ओपन करके, मीन्स ये वाला साइड यहाँ पे ऐसे ना रख के, सपोज इफ दैट पाइप इज लाइक दिस, ठीक है. सो यहाँ से पानी फिल करते हैं पूरा, मतलब वो जो पूरा पंप है या फिर मोटर है या फिर इम्पेलर है, उस इम्पेलर तक पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक फिल हो जाए, उतना पानी हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है. और ये फिल करने के बाद ये जब ये ओवरफ्लो होने लगता है, एंड देन वी कैन इंश्योर दैट होल सक्शन पाइप इज फिल्ड विद द वाटर. देन वी कैन डिप दिस पाइप लाइक दिस. और ये फिल करने के बाद वी कैन इंश्योर और वी कैन स्टार्ट द पंप, ठीक है. सो दिस इज हाउ प्राइमिंग इज डन नॉर्मली, ठीक है. देर आर सम पंप्स विच आर इंडस्ट्रियल पंप्स. कुछ पंप्स ऐसे भी है जहाँ पे यहाँ पे एक वॉल्व होता है, ठीक है. तो वो वॉल्व दो काम करता है. वन थिंग, अगर पंप में कुछ भी एरर है या फिर यहाँ पर अगर एयर ट्रैप्ड हो गई है इस पानी सक्शन पाइप में, सो दैट एयर कैन बी रिलीव्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू दिस पर्टिकुलर वॉल्व. तो ये एक फर्स्ट उसका फंक्शन हो गया. सेकेंड फंक्शन, यहाँ पर एक इनलेट भी होता है, तो यहाँ से हम लोग पानी फिल कर सकते हैं. सो अगर एयर पकड़ गई है तो एयर वहां से निकल जाएगी, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर प्राइमिंग यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं है, सो देन हम लोग उसके थ्रू हम लोग पानी फिल कर सकते हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स बाय विच वी कैन फिल द सक्शन पाइप ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन और ड्यूरिंग द वर्किंग, ठीक है. पूजा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Very good. So I really appreciate your question, and it is good that you have started your study. So now we will come back to our third unit. Okay? So just a minute. Okay, this is what already we had discussed. You can see the PPT, isn't it? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Yes, sir. Okay, so this is what is the syllabus, and quite interesting topic. Our third and fourth unit is on the vehicles. ठीक है. थर्ड यूनिट बहुत ही छोटा है और प्रोडक्टिव है. प्रोडक्टिव मीन्स जिसमें से हमें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसमें सोचने वाली चीज़ें है नहीं. सो लेट अस गो थ्रू द सिलेबस वेरी फास्ट, और अदर वी विल डिस्कस द ओन टॉपिक, ठीक है. सो थर्ड यूनिट में मैं जस्ट ब्रीफ बोल देता हूँ. थर्ड यूनिट में हमें सिर्फ क्या देखना है, स्पेसिफिकेशंस देखने हैं. कोई भी व्हीकल है, कौन कौन से व्हीकल है, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट. देन वी हैव टू सी द डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑल दीज व्हीकल्स, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर थर्ड यूनिट, ठीक है. देन in the fourth unit, whatever systems we had seen in the third unit, that we will discuss in the fourth. बहुत सारे systems होते हैं एक vehicle के अंदर, तो वो सारे system को हम लोग सिर्फ touch करते जाएंगे, या फिर उसका brief में working क्या है, that we will going to discuss, ठीक है. So this is what is the overall scenario of unit number 3 and unit number 4. As of now, यही तक हमारा सिलेबस है. दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन वी डू हैव. अगर फिफ्थ यूनिट ऐड होता है, सिक्स्थ यूनिट ऐड होता है, दैट वी विल ट्राई टू कवर अप, ठीक है. बट एज ऑफ नाउ योर सिलेबस इज यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है. और उसी के ऊपर आपकी ऑनलाइन एग्जाम कंटिन्यू होने वाली है. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड यूनिट. सो फॉर दैट we are going to discuss the general energy transformation, और एक फोर व्हीलर में एनर्जी कहाँ से कहाँ पे कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है. हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं और व्हील्स जो है दे स्टार्ट रोटेटिंग. यहाँ से यहाँ तक पावर, मतलब इंजन से लेके व्हील्स तक पावर कैसे ट्रांसफर होती है, कौन कौन से एक सिस्टम्स के थ्रू, कौन कौन से
डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू वो पावर ट्रांसफर होती है, दैट वी विल सी फर्स्ट। ठीक है, नाउ अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग का टाइम थोड़ा कम है, इट इज 8 मिनट्स, बट अगर मीटिंग बीच में खत्म होती है, ठीक है, देन इमीडिएटली आपको ये मीटिंग फिर से दोबारा ज्वाइन करनी है, मैं आपको वैसे बताऊंगा। ठीक है, नाउ वेरी फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। Now this is what is the engine. ठीक है, then engine, so this is what is the engine. Now what we are going to discuss is we are discussing rear wheel drive layout. Now what do you understand by this rear wheel drive? Come on, tell me. The car which has an engine in the front. Sorry, Sir, engine is गाड़ी, the engine which is in the front of the car, like आगे के portion में हो। okay, engine is in the front, very good. और कुछ रेयर व्हील ड्राइव से आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए। नो वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे के टायर फोर स्ट्रोक होता है। पल्लवी बेटा, अंकलेश्वर बोलिए। सर वो पीछे के टायर में मतलब इंजन से पावर जाता है रेल में। मंच टायर से वेरी लेआउट। गुड, वेरी गुड, यस पूजा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रेयर व्हील ड्राइव लेआउट। ठीक है, व्हाट आशुतोष हैज पॉइंटेड, फ्रंट व्हील, फ्रंट में इंजन है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग 4th यूनिट में देखेंगे कि कहाँ पे कैसे सिस्टम ट्रांसफर है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, उस पार्ट का फंक्शन क्या है वो देखना है, एंड देन उसका वर्किंग क्या है। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे इंजन फ्रंट में है, ठीक है, एंड rear wheel drive means whatever power is produced by the engine, that power will be transferred to the rear wheel. जो पिछले वाले पहिए है, पिछले वाले व्हील्स है, उसको हम लोग वो पावर देने वाले हैं, एंड फ्रंट व्हील आर दी आइडियल व्हील्स, उसको हम लोग पावर नहीं दे रहे। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेयर व्हील ड्राइव लेआउट। एंड लेआउट मीन्स स्ट्रीट लेआउट, कहाँ से कहाँ पे पावर ट्रांसफर हो रही है, या फिर कौन से पार्ट के बाद कौन सा पार्ट है, that is nothing but the layout। ठीक है, so very first we have engine, so यहाँ पर engine है, then after that second part is nothing but the flywheel, so immediately after the engine we have flywheel, then next one is the clutch, so this is what is the clutch, after clutch we have 4th part, that is nothing but the gearbox। ठीक है, so 4th one is the gearbox, then after gearbox this whole particular thing is nothing but the propeller shaft। ये पूरा का जो पूरा है, that is nothing but the propeller shaft, and in propeller shaft we do have universal joints, so there are 2 universal joints। ठीक है, और बीच में एक और एक joint होता है, that is nothing but the slip joint, that we will see in the 4th unit। ठीक है, then this circular portion is nothing but the differential, so that is the differential। okay, then this 8 number is nothing but the drive axle, so this is the axle and this one is the axle। ठीक है, this will be the front axle and this will be rear axle। now we have to assume that this is the front side of the wheel। okay, ये वाला जो है वो front side है wheel का। ठीक है, then next is these are the wheels, these are the front wheels, these are the rear wheel। okay, and this one, this whole body is nothing but the chassis। ठीक है, what is this, this is nothing but the chassis। उस chassis के ऊपर पूरा vehicle का अपर बॉडी होता है, वो उसके ऊपर माउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में सीट्स होते हैं, बोनेट होता है, सो ऑल दोस थिंग्स आर माउंटेड ऑन द चैसी। ओके, इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ?
No, sir. No, sir. No, sir. Very good. So before entering into the working, what we will do, we will stop this meeting here only and we will rejoin meeting again immediately. ठीक है? Okay, sir.